चलो सर आप यस। सर आप असाइनमेंट बना के कुछ प्रॉब्लम्स भेज दीजिएगा। असाइनमेंट जो मैं आपको होमोसाइड प्रॉब्लम छोड़ रहा हूँ सब प्रॉब्लम्स करिए आप। और उसमें मैं कुछ अनसोल्व प्रॉब्लम्स देता तो हूँ आपको होम असाइनमेंट ओके एक्सरसाइज की, सर। वो सब ट्राई करिए। ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक भी है 15.7। न्यू नेक्स्ट टॉपिक ट्रिपल इंटीग्रल इन cylindrical and spherical coordinates. Cylindrical in cylindrical and spherical. Cylindrical and spherical. पहले cylindrical ले लेते हैं। So this cylindrical coordinate transformation is also important when we are dealing in engineering, geometry, physics, or in some branches of science where circular, cylindrical, or cone or spherical type of figures are there. Now, there you can use cylindrical coordinates. So it is just you can say generalization of polar form from 2 dimension to 3 dimension. 2 dimension में polar form थी आपके पास. Now if you are in the 3 dimension, 3 dimension में you have one more dimension z. So what I will do, x, y, and z. So here polar में what you are having? Polar में you have angular distance, angular movement, and this radial distance. See, you are taking theta as the angle from the positive x-axis, and r is the distance from the origin. Now, one more dimension z is also there. So if you will take a point here, somewhere here, point P, so the coordinate will be what now of this point P? So theta, तो polar तो हमारे पास r comma theta था, है ना? You have in 2 dimension, and 3rd dimension में the z coordinate also you are adding. So r theta z. So this is the cylindrical coordinate representation by these triples. Let's triples. So r theta is safe, which you are taking from the polar form. X is equal to r cos theta and y is equal to r sin theta. ठीक है. So r you can find. R will be how much? R square is equal to x square plus y square. Theta you can find by tan inverse y upon x. So ये first two coordinates are same as from the polar, and z is third. You are adding here. So z is equal to that. So x is r cos theta, y is r sin theta, and z is z. Where r square is this. This is called cylindrical coordinates. This is the relation between Cartesian and cylindrical coordinates. Okay. Now in cylindrical coordinates, suppose you have an equation where I am asking in cylindrical coordinates. If I have r is equal to, suppose a, r is equal to a is some fix. So what does it represent? क्या represent करेगा ये बताओ? I am taking r is equal to a.
इसका मतलब क्या है पहले तो ये बताओ, व्हाट डज प्लेन इट को रिप्रेजेंट करेगा सर। है? प्लेन को सर। कैसा प्लेन? सर पैरेलल टू एक्स वाई प्लेन। पैरेलल टू एक्स वाई प्लेन कैसे बने? आर इज इक्वल टू ए का मतलब सॉरी सर, एक्स वाई प्लेन को रिप्रेजेंट करेगा सर। पूरे एक्स वाई प्लेन को? क्यों? क्या जेड जीरो है यहाँ पे? इफ आई एम सेइंग आर इज जी इक्वल सर। टू ए, व्हाट अबाउट थीटा एंड व्हाट अबाउट जेड? ये क्या है? इफ समथिंग इज गिविंग टू यू, then समथिंग इज नॉट गिविंग। तो जो नॉट गिविंग है दैट डज नॉट मीन कि वो जीरो है। वो जीरो नहीं होता है। वो क्या होते हैं? फ्री वेरिएबल्स होते हैं वो, यानी कि उन पे कोई रेस्ट्रिक्शन ही नहीं है। दे मे टेक एनी वैल्यू। ये दोनों क्या है यहाँ पर? फ्री वेरिएबल्स है। अब बताइए, तो आर इज इक्वल टू ए मीन्स व्हाट? कि आप यहाँ से आर इज इक्वल टू ए, सपोज यहाँ तक ए फिक्स हो गया हुआ, ठीक। आर इज इक्वल टू ए मीन्स व्हाट कि हेयर आई हैव आर इज इक्वल टू ए। तो यानी कि सपोज कि ये आपका फिक्स है, ये एक्स वाई जेड, ठीक है। ये आर इज इक्वल टू ए हो गया। नाउ थीटा कैन टेक एनी वैल्यू, तो थीटा क्या कर सकता है? थीटा कैन मूव जीरो सर टू सिलेंडर प्रेजेंट करेगा सर। 2 पाई, है ना। और जेड में टेक एनी वैल्यू, जेड भी कुछ हो सकता है। तो इस क्या बनेगा ये इस तरीके से? क्या सर बना ये? सिलेंडर बनेगा ये का। सिलेंडर बनेगा, है ना। जी सर। हाँ, तो इट्स अ सिलेंडर अबाउट जेड एक्सिस। इसकी एक्सिस क्या होगी? जेड एक्सिस। इसके भी ये फिक्स है, इस तरीके से घूमेगा, है ना। सो आर इज इक्वल टू ए, इट इज नॉट अ सर्किल। पोलर में अगर होता है तो पोलर में हम इसे सर्किल कहते हैं खाली, है ना। फिर पोलर में क्या होता है? सिर्फ थीटा एंड आर। सिलेंड्रिकल में क्या है? सिलेंड्रिकल आर इज इक्वल टू ए रिप्रेजेंट्स अ सिलेंडर अबाउट द जेड एक्सिस, ठीक। जेड एक्सिस को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं? जेड एक्सिस का मतलब क्या है? आर इज इक्वल टू जीरो। अगर आर इज इक्वल टू जीरो है, इट मीन्स इट इज योर जेड एक्सिस, है ना। आर जीरो, जेड एक्सिस जीरो मतलब यहाँ पहुंच गया हम। अच्छा, अगर नाउ आई एम फिक्सिंग थीटा, देन थीटा इज इक्वल टू, सपोज आई एम फिक्सिंग थीटा नॉट। नाउ व्हाट? थीटा इज फिक्स नाउ, मीन्स कि आई हैव मूव्ड फ्रॉम हेयर। यहाँ से मूव करे कुछ, सपोज सम पाई बाय 3 सपोज मूव कर दिया। नाउ थीटा इज फिक्स, इससे ज्यादा मैं आगे नहीं जा सकता, इस पॉइंट पे आ गया। नाउ आर, इट मीन्स व्हाट? नाउ आर एंड जेड, दे आर फ्री, दे आर फ्री वेरिएबल्स। सो आर कैन टेक एनी वैल्यू। तो आर कहाँ से? आर कैन टेक एनी वैल्यू अलोंग दिस एंड अलोंग, है ना। थीटा फिक्स है लेकिन, तो ये अभी इस तरीके से सर्कुलर मूव नहीं करेगा, लेकिन आर कैन गो फ्रॉम दिस टू दिस, पीछे भी जा सकता है ना। एंड जेड कैन गो लाइक दिस। क्या होगा ये बताओ? सर प्लेन होगा सर। प्लेन होगा, है ना, क्योंकि थीटा यस फिक्स है, सर। तो यू कैन हैव लाइक दिस, इस तरीके से। तो इट्स अ प्लेन। तो थीटा इज इक्वल टू थीटा नॉट रिप्रेजेंट्स अ प्लेन। कैसा प्लेन है? वर्टिकल प्लेन है, that contains the z axis, that contains the z axis, है ना। z axis कंटेन करेगा, इस तरीके से आ रहा है।
थीटा आपको फिक्स है, तो थीटा डिस्टेंस आ गई, थीटा इज इक्वल टू थीटा नॉट. नाउ आर कैन टेक दिस and z also it can take like this. तो जो अगर आप देखेंगे तो इट विल बी अ प्लेन, है ना, जो z को रख रहा है, z एक्सिस इसके अंदर इंक्लूड हो रही है पूरी, तो वर्टिकल प्लेन हो जाएगा. Now what about if I am fixing your z? Now z is fixed, z is equal to z naught. That means theta r and theta are free variable. तो z is equal to z naught फिक्स कर दिया हमने. That means ये line, suppose this is your z is equal to z naught. ये तो होगी z is equal to z naught passing through some point, infinite line. अब theta can take any value. तो theta can take means क्या हुआ? It can rotate and r can take any value. क्या बनेगा बताइए? भाई हम क्या बनाएंगे इसे? सर प्लेन प्लेन बन जाएगा सर. है थीटा इस तरीके से मूव कर सकता है और r का मतलब कुछ भी वैल्यू ले सकता है, तो क्या बनेगा ये? एलिप्स. इलिप्स. इलिप्स नहीं है, इलिप्स तो जब बनता है ना जब रेडियस कुछ फिक्स होती है, रेडियस फिक्स नहीं है यहाँ पे, रेडियस फिक्स नहीं है. अगर रेडियस फिक्स कर देंगे तो सर्कुल सर्किल बन जाएगा, या वो बन जाएगा आपका. रेडियस इज नॉट फिक्स, आर इज द रेडियस ना. यस क्या सर. बन रहा है ये? प्लेन बनेगा, है ना? प्लेन. हाँ. इफ आर इज फिक्स देन इट विल बी अ सर्किल. सर्किल और whose center is z is equal to z naught. यहाँ पर r फिक्स नहीं है तो आप घुमा रहे हैं, लेकिन r को भी तो बढ़ा रहे हैं साथ में, तो क्या बन रहा है ये? इट्स अ प्लेन. कैसा प्लेन है? परपेंडिकुलर टू द z एक्सिस, है ना. दिस वाज अ प्लेन कंटेनिंग z एक्सिस, इसलिए वर्टिकल प्लेन था. ये एक फ्लैट सा हॉरिजॉन्टल प्लेन, हॉरिजॉन्टल मतलब पैरेलल टू xy प्लेन यू कैन से. परपेंडिकुलर टू z एक्सिस मींस व्हाट? पैरेलल टू xy प्लेन. ओके. तो ये सिलेंड्रिकल में देखिए फिगर्स चेंज हो जाएंगी इफ यू आर फिक्सिंग सम, so you have to see geometrically कि how they are representing that. Okay, clear है? यस So, सर. in cylindrical coordinates, if r is equal to 2 is given to you, somebody asks what r is equal to represent in cylindrical coordinates, then you will say it's a cylinder of radius 4, of radius 2, and axis is z axis. ठीक. If theta is equal to some pi by 4, what does it represent? So it's a plane containing the z axis. If somebody asks what z is equal to 4 represents, so it's a plane perpendicular to the z axis. Okay, ये represents हो जाएंगे in cylindrical, ध्यान रखना. In cylindrical coordinates. Now here you can find the formula also if you want to find the formula for triple integral. And I am representing if some to find the value of triple integral using the limits of cylindrical coordinates. So I can find this by taking the concept of polar form. कैसे निकलेगा भाई? तो इसमें हम एक अगर वेज ले लें
when we are computing the triple integral over a region D in cylindrical coordinates, है ना, computation of triple integral over region D region है लिख in cylindrical coordinates. जो रिमांड सम का फॉर्मूला आएगा, आई विल टेक वेजेस, तो हेयर इफ यू आर टेकिंग, तो सिलेंड्रिकल फॉर्म में मैं वेजेस जो लूंगा, आई कैन टेक वेजेस लाइक दिस, you have इस तरीके से आई एम टेकिंग, सपोज इट इज योर z एक्सिस एंड यू हैव सम सिलेंड्रिकल बॉडी, उसमें से हमने क्या करा है, एक ये वेज ले लिया है, 3 डायमेंशनल वेज, है ना, एक कट निकाल दिया, जैसे लाइक सपोज जैसे वाटरमेलन देखा होगा आपने, वाटरमेलन से कभी एक पीस कट करके निकालते हो तो कैसा आता है, 3 डायमेंशन, ऐसे ही तो वेज आता है वाटरमेलन में, तरबूज में, यस सर। है ना। तो अगर आपके पास वाटरमेलन शेप की बॉडी है, क्योंकि आपने देखा इसलिए उसका एग्जांपल दे रहा हूँ, तो वहां पे जो वो कट करके खाते आपको कि देखिए कितना मीठा है, तो ये एक वेज शेप आता है। हमें पूरा बॉडी का अगर निकालना है तो एक वेज शेप का ले लेंगे, उसे इंटीग्रेट कर देंगे, है ना, ये करते आए हैं इधर। तो एक वेज शेप हुआ है, तो इसमें क्या हुआ, हियर यू विल बी हैविंग सम एंगल, क्योंकि आर थीटा जेड होता है, ध्यान रखो, तो यू विल बी हैविंग सम एंगल, सपोज दिस एंगल इज डेल्टा थीटा, ओके, ये आर डिस्टेंस पर है, एट अ डिस्टेंस आर, तो आई एम टेकिंग इस वेज शेप का स्मॉल डिस्टेंस डेल्टा आर, एंड सपोज आई एम टेकिंग दिस हाइट इज डेल्टा जेड, ओके। सो पोलर फॉर्म, क्योंकि पोलर फॉर्म में हमें मालूम है, पोलर फॉर्म में आपके पास आर डी आर आता है टर्म, ठीक, तो यू विल बी फाइंडिंग व्हेन दिस, ये जो है ये थर्ड साइड, ये तो डेल्टा आर है, ये डेल्टा जेड है, दिस विल बी कमिंग आर डेल्टा थीटा, ये क्वांटिटी आएगी। तो यू गॉट 3 डायमेंशंस, ये तीनों डायमेंशन से पता चल गए आपको। यू कैन फाइंड द वॉल्यूम ऑफ दिस स्मॉल वेज, इसका वॉल्यूम अगर मैं सपोज इट इज योर केथ वेज, है ना, सेम थिंग वी आर डूइंग लाइक वी हैव डन, कि वी आर डिवाइडिंग इट इनटू के स्मॉल सिलेंड्रिकल वेजेस, तो वॉल्यूम ऑफ केथ वेजेस अगर ये के मालूम है, तो इसका वॉल्यूम जो होगा डेल्टा वी के, इट विल बी व्हाट, डेल्टा जेड के इंटू आर के, डेल्टा आर के एंड डेल्टा थीटा के, ठीक है, ये आ जाएगी। ये स्मॉल वॉल्यूम, ये वॉल्यूम होगा इसका आपका, ठीक, ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस आर डेल्टा थीटा आएगी, डेल्टा आर डेल्टा थीटा आएगा, आर डेल्टा थीटा, तो यू आर जस्ट मल्टीप्लाइंग द डायमेंशन ऑफ दिस थ्री, ये तो वॉल्यूम होगा, लेंथ ब्रेथ हाइट, तो डेल्टा थीटा के आर के डेल्टा थीटा के ये एक साथ है, ओके। सो इफ आई विल टेक द लिमिट, तो लिमिट एंड ये इस पे हम सबमिशन लगा दें अगर, तो इट विल गिव यू डिमांड सम विल बी व्हाट, सबमिशन k is equal to 1 to n f of r k theta k z k and delta v k, ये जो डेल्टा वी के निकाला है। Now if I will take limit n tending to infinity Sn, so it will give you the triple integral d f dz r dr d theta, okay, so it will be the formula in cylindrical coordinates। तो ध्यान रखना है r dr टर्म आएगा, ये वही है जैसे पोलर में आता है ना, एज आई टोल्ड यू, इट इज द एक्सटेंशन ऑफ पोलर फॉर्म फ्रॉम 2 डायमेंशन टू 3 डायमेंशन। तो पोलर फॉर्म का जो कोऑर्डिनेट में आर डी आर आता था वो आएगा आर डी आर डी थीटा, और जेड कोऑर्डिनेट का डी जेड आएगा, ठीक।
ज्योमेट्रिकली आप देख सकते हैं कि किस तरीके से आ रहा है। सो हियर यू कैन फाइंड द ट्रिपल इंटीग्रल यूजिंग दिस। अगर आपको वॉल्यूम निकालना है तो वॉल्यूम में क्या हो जाएगा, F1 हो जाएगा। तो वॉल्यूम विल बी गिवन बाय ट्रिपल इंटीग्रल dz r dr d थीटा। ओके, तो वॉल्यूम ऑफ एनी बॉडी, जैसे वही अगर वाटरमेलन से आपको पूछूं मैं वाटरमेलन का वॉल्यूम, तो इट विल बिकम सिंपल ट्रिपल इंटीग्रल डी, लिमिट्स निकाल ली होंगी हमें, dz r dr d थीटा। ये वॉल्यूम का फॉर्मूला हो जाएगा इन सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स। ओके, बताइए भाई, ये चीज क्लियर है हाउ आई फाइंड इट? सेम थिंग यस जैसे सर। रिमानियन सम हम करते थे वही है, बस यहाँ पर आर डी आर का टर्म आ रहा है ना, सेम, बिकॉज इट इज पोलर फॉर्म, सो इट इज इन पोलर यू हैव आर डी आर टर्म है ना, वो यहाँ पर अगर आप इसको मेजर करेंगे तो ये आर डेल्टा थीटा आएगा, ज्योमेट्रिकली यू कैन फाइंड इट। So one example, page 876, find the limits of integration in cylindrical coordinates. In cylindrical coordinates for integrating a function f r theta z over the region BD bounded below by the plane z is equal to 0, bounded below by the plane z is equal to 0, literally by the circular cylinder x square plus y minus 1 whole square is equal to 1, and above by the paraboloid. Z is equal to x square plus y square. Take. So here you have to find the limits of integration in cylindrical coordinates of the region D. पहले D sketch करना होगा है ना. First step is sketching. Bounded below by the plane Z is equal to 0. ठीक. तो Z is equal to 0 कौन सा plane है आपका? Which plane is it? XY plane sir. XY plane है ना. So if I am plotting it, so XY plane. इस पेज का मैं नेक्स्ट पेज पे बनाते हैं. चलो यहाँ बनाते हैं. So bounded below by the plane Z is equal to 0. सपोज ये आपका ऐसे ऐसे छवि नहीं दिखेगा, इस लाइन को इधर लेते हैं. चलिए और अच्छा बना देते हैं. और ये आपकी ले ली हमने y एक्सिस, ठीक, एंड दिस इज x एक्सिस. ये करते हैं हम.
O X Y Z. So bounded below by the Z is equal to 0. ये Z is equal to 0 means your whole XY plane. चलो. And literally by the cylindrical circular cylinder. ये सिलेंडर है क्या? ये क्या है? Paraboloid. नहीं, पैराबोलॉइड नहीं, तो नीचे है. लिख रहा है यार, सर्कुलर सिलेंडर. सिलेंडर है ये. हाउ इट इज Yes, सिलेंडर? yes, circular. क्योंकि as I told you ना, Z नहीं है ना, तो Z फ्री वेरिएबल है. इट्स अ सर्कुलर सिलेंडर whose base is what? इसको आप पहले सर्किल, सिलेंडर कैसे बनता है? हम एक सर्किल बनाते हैं और फिर उसको ऊपर ले आते हैं, वो Z होता है. तो यहाँ पे X सेंटर क्या है? 0,1, रेडियस इज 1. तो X पर 0, जब आप ड्रॉप करेंगे तो सेंटर इज 0,1. तो 0,1 कहाँ आएगा? ये आएगी ना डिस्टेंस 0,1. सपोज Yes, sir. X is 0, Y is 1. 1 रेडियस का एक सर्किल ड्रॉ करेंगे हम, तो ये 1 डिस्टेंस है ये आपकी. दिस इज योर 1. सेंटर इज 0,1. नाउ यू प्लॉट अ सर्किल. सर्किल हम प्लॉट कर सकते हैं इजीली. चलो यहीं से ड्रॉ करते हैं सर्किल. ये रहा सर्किल. कैसा आएगा सर्किल भाई? सर्किल को अगर हमें बनाना है, ये ले लेते हैं, इसको ले जाओ. ये सपोज करिए सर्किल है, थोड़ा सा और बड़ा कर देते हैं. ठीक, इट इज योर सर्किल 0,1. ये भी सर्किल है, लेकिन जब सर्कुलर सिलेंडर की बात हो रही है, जाहिर है 3 डायमेंशन में है ना. 3 डायमेंशन में ये क्या बन गया? एक सिलेंडर, क्योंकि Z इज फ्री वेरिएबल. तो यहाँ पर ये एक सिलेंडर है, आप इसको ऊपर एक्सटेंड कर रहे हैं. Z पे कोई पाबंदी नहीं है. यू डोंट हैव एनी रेस्ट्रिक्शन ऑन Z. सो Z इज एनी फ्री वेरिएबल. ठीक है, चलो. आई कैन टेक इट एज ये तो है ही, ऐसे नीचे भी जा रहा होगा, लेकिन नीचे नहीं जाएगा, बाउंडेड बाय XY प्लेन है ना, तो ये इतना ही रहेगा. अभी एक वन थिंग मोर इज गिवन. क्या दिया हुआ था? लिटरली. लिटरली क्यों दिया था अभी आपको समझ में आ जाएगा. अबव बाय द पैराबोलाइड. एक पैराबोलाइड और है. ये कैसा पैराबोलाइड है? अपवर्ड, डाउनवर्ड? बोलो. अपवर्ड है भाई. एक्स स्क्वायर स्क्वायर का मतलब क्या हुआ? इट विल गोइंग. पैराबोलाइड ऐसा है या ऐसा है, बस ये बता दो. Upward direction. सर तीसरे वाला है सर. ये वाला है ना, जिस कॉल्ड अपवर्ड पैराबोलाइड. कि एक्स आप देख सकते हैं, एक्स वाई 0 पे Z 0, तो इसका वर्टेक्स कहाँ है? ओरिजिन पे है ना. तो इट इज अपवर्ड पैराबोलाइड. तो यहाँ ये इसका वर्टेक्स होगा एंड इट विल बी गोइंग लाइक दिस, 3 डायमेंशन, इस तरीके से. तो व्हेन यू विल सी, तो ये एक इसको भी कट करेगा. इट विल गो लाइक दिस. इसे कट करेगा. कट करेगा तो यहाँ पे कुछ लिटरली आपका इस टाइप का सर्किल, क्योंकि 3 डायमेंशनल है, इस तरीके से कट करेगा ना. इधर जा रहा होगा ऐसे ही है. हमें राइट हैंड साइड चाहिए. तो ये जो आपके पास फिगर बनी है अब इस टाइप की, दिख रही है ये. Yes, sir. ये और ये. अब ये जो फिगर है, दिस इज योर द D. दिस इज योर D. इस तरीके से कट किया इसने यहाँ, इस पे ये आया, और ये नीचे एक बेस है इसका, है ना, यूं. ये आपका, इसको अगर मैं अलग प्लॉट करूं तो ये है. ये एक नीचे इसका बेस है, इस तरीके से सर्कुलर कुछ इस टाइप का फिगर. ये है, दिख रहा है ये, यही है. 3 डायमेंशनल फिगर है. जैसे आपके कोई ग्लास हो, सर्कुलर ग्लास. ग्लास को आप अगर स्लैंट कट कर दो, है ना, तो ऐसा दिखेगा. चलो अब इसकी लिमिट. तो स्केचिंग, फर्स्ट स्टेप इज स्केचिंग. अगर आपने स्केचिंग से कर ली है तो यू आर 60% डन. आधे से ज्यादा काम हो गया आपका. अब हमें प्लॉट करना है इसका लिमिट्स, फाइंडिंग लिमिट्स. ठीक, तो आई वांट टू फाइंड लिमिट्स.
तो डबल इंटीग्रल हम क्या लेंगे, एफ ऑफ आर थीटा जेड। पहले मैं लिमिट लूंगा जेड की, जेड की लिमिट लेनी है हमें। अब आपको मालूम है कि यहाँ पर कोई भी पॉइंट पी जो होगा वो आर थीटा जेड होगा। तो जब हम जेड की लिमिट लेंगे तो जेड की लिमिट कैसे लेते हैं, एक तो इन टर्म्स ऑफ आर थीटा आएगा, है ना। हाउ आई विल टेक, वैसे ही बिल्कुल जैसे हमने पीछे किया था कि यहाँ से आई विल टेक एनी पॉइंट हेयर, आर्बिट्रेरी पॉइंट आर कॉमा थीटा, और आई विल ड्रॉ अ लाइन इन द इंक्रीजिंग डायरेक्शन ऑफ जेड, है ना। तो आप क्या करेंगे, यू विल कंसीडर एनी पॉइंट आर थीटा इन द रीजन, जो इसका प्रोजेक्शन आर है आपके पास ही, क्योंकि क्या ऑर्डर है आपके पास, देखिए डी जेड आर डी आर डी थीटा। तो क्या बताया था कि जो लास्ट टू है उस, तो हम आर थीटा प्लेन पर प्रोजेक्शन लेंगे इसका। तो प्रोजेक्शन क्या आएगा, एक सर्किल ही तो आएगा, इसका प्रोजेक्शन क्या है, दिस सर्किल। यहाँ पे एक आर्बिट्रेरी पॉइंट ले लिया आर कॉमा थीटा, यहाँ से आई विल टेक अ रे इन द इंक्रीजिंग डायरेक्शन ऑफ जेड, ये गई रे। तो दिस रे इज एंटरिंग हेयर एंड लीविंग हेयर, है ना, इस रीजन को लीव कर रही है यहाँ। तो यहाँ पे मुझे इस सर्किल की इक्वेशन लिखनी होगी पोलर फॉर्म में और इसकी थीटा के टर्म्स में। तो इस सर्किल आपके पास क्या था, ये तो आपको मालूम, व्हाट वाज दिस सर्किल, एक्स स्क्वायर प्लस वाई माइनस वन होल स्क्वायर इज इक्वल टू वन। इसको अगर मैं ओपन कर लूँ, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बोलो जरा प्लस वन, and वन h2 कैंसिल। equals to 1. अब हमें इसे लिखना है, आई वांट टू रिप्रेजेंट इट इन पोलर फॉर्म। तो क्या होगा पोलर फॉर्म में, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर तो हो गया आर स्क्वायर माइनस टू वाई, वाई कितना होता है आर साइन थीटा इज इक्वल टू जीरो। व्हाट इज द इक्वेशन इज कमिंग, आर इज इक्वल टू टू साइन थीटा, है ना। आर इज इक्वल टू जीरो आई कैन नॉट टेक, सो इट विल बी आर इज इक्वल टू टू साइन थीटा। 2 तो ये जो सर्किल है, इस सर्किल की पोलर फॉर्म क्या है, आर इज इक्वल टू टू साइन थीटा, इस सर्किल की इक्वेशन यार। सो इट इज, है ना। अब यहाँ पे देखो z, इसकी इक्वेशन जो है ये और निकालिए, ये क्या था, व्हाट वाज दिस, दिस इज अ पैराबोलाइड, दिस इज अ पैराबोलाइड, क्या है ये, z इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, है ना। कितना हो गया ये कितना है, आर स्क्वायर सर। आर स्क्वायर। ठीक है, तो z की लिमिट है चल गई, तो z इज एंटरिंग फ्रॉम एक्स वाई प्लेन, रे यहाँ से एंटर हो रही है ना, ये पॉइंट। तो लोअर लिमिट क्या है z की, एक्स वाई प्लेन पे है, ये सर एक्स, टू साइन थीटा। नहीं यार, z क्या है यहाँ पर, यहाँ पर z की लेंगे पहले हम, इसकी वैल्यू अभी लिखेंगे। यहाँ z रे आपने हाँ जीरो, रे आप यहाँ से एंटर करेंगे ना एक्स वाई प्लेन से, तो यहाँ ये जो है एक्स वाई प्लेन पे तो z जीरो है, यहाँ से रे एंटर हुई, दिस इज योर लोअर लिमिट, और जहाँ पे लीव हुआ वो अपर लिमिट। अपर लिमिट क्या हुई, जहाँ लीव कर रहा है ये क्या है, z इज इक्वल टू आर स्क्वायर, r square. ठीक है। इट इज द लिमिट ऑफ डी जेड। अब आर डी आर, आर की लिमिट के लिए क्या करते हैं, इस रीजन में अब हम क्या करेंगे, एक रे प्लॉट करेंगे, ड्रॉ करेंगे यहाँ से ओरिजिन से पासिंग थ्रू दिस पॉइंट, ये रे हमने ड्रॉ करी, ठीक है। चलो इसे दूसरे कलर में ले लो चाहे तो, ये रे आ गई आपके पास इसी पॉइंट से, क्योंकि अब आपको लिमिट लेनी है आर की इन टर्म्स ऑफ थीटा। तो ये आर है, अब आर आपको देखना है कि आर यहाँ पर व्हाट द वैल्यू आर कैन टेक। तो आर इज एंटरिंग फ्रॉम हेयर, तो आर की लोअर लिमिट क्या है, आर की लिमिट कैसे होती है, यहाँ से यहाँ, तो एंटरिंग फ्रॉम हेयर, तो आर इज जीरो, लोअर लिमिट तो जीरो है ना, और लीविंग इस कर्व को लीव कर रही है। इस कर्व की इक्वेशन क्या थी, अभी आपने निकाली है, कितनी है, टू साइन थीटा। समझ में आई बात नहीं 2 आर की, sin theta. हाँ बताओ, Yes sir. है ना।
तो अब ये जो आपके पास आर थीटा है, इसको आप जब लिमिट ले रहे हैं तो इसकी लिमिट यू कैन टेक, ये सिंपल एक्स वाई प्लेन पर है जैसे आप, तो एक्स वाई प्लेन में आपके पास इस सर्किल जो बना हुआ है वाई डायरेक्शन में, ये ऐसे बना हुआ है आपका सर्किल, ये सेंटर है 0,1। ओके, तो यहाँ पर आर की लिमिट क्या है, 0 to 2 साइन थीटा। अब थीटा की बात करें, थीटा इज हाउ मच, थीटा कितना एंगल फ्रॉम पॉजिटिव एक्स एक्सिस, ऊपर ही ऊपर है, बताओ। 0 to pi. 0 to पाई, करेक्ट। तो दिस इज द लिमिट और दिस इज द वैल्यू। ये समझ में आई कैसे लिया हमने, इन दिस वे यू कैन फाइंड द लिमिट्स। ठीक है, तो दिस इज योर cylindrical coordinates. So how to take a limit? Firstly, we will take the limit of z in in terms of r theta. Same way, take a ray in the direction, increasing direction of z. जहाँ enter कर रही है, that is your lower limit. Where it is leaving, it is upper limit. Then plot the region. रीजन में आर की लिमिट देखेंगे थीटा के टर्म्स में, तो रीजन को आपने अलग से प्लॉट कर लिया, देख सकते हैं 0 to 2 साइन थीटा था यहाँ पे, है ना। तो ये आर की लिमिट हो गई, थीटा एंगल देख लेंगे बस कि ठीक कितना एंगल बना रहा है ये, तो ये रे कितना एंगल बनाएगी